So filtration membrane formed by, तो यहाँ पे कितनी मेम्ब्रेन होगी आपकी? पहली है एंडोथेलियल cells of fenestrated capillaries. Second one is basement membrane, and third one is podocytes of Bowman's cup, podocytes. So these three are the cells जो क्या बनाती है आपकी basement membrane. Clear? मूव करें नेक्स्ट। अरे अभी पूरा बनाने दो, उसको बनाने की बोल रहा हूं मैं, अभी बना नहीं है, बहुत बाकी है अभी तो, हटा दे इसको। नेक्स्ट अपना बोमन्स कप, ये इधर बोमन्स कप आ जाओगे। नाउ दिस इज द पार्ट जो मैंने ड्रॉ किया है, दिस पार्ट इज नोन एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, पीसी। ये तो हो गया आपका बोमन्स कप, मैं नाम नहीं लिखा इसका, पर ये क्या है? बोमन्स कप। देन वी हैव द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। दिस पीसीटी विल बी कंटिन्यू एंड देन इट विल बी द पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। सो पहला पीसीटी देन क्या हो गया आपका? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट यहाँ पे आपको याद रखने। दिस इज द वाइडर पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले, जो वाइड होता है। देन इट विल बी having a narrow part of loop of Henle. So this is the narrow part of loop of Henle, and why it is known as loop of Henle? Because ये loop बनाता है ऐसे, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? loop of Henle। और ये narrow part है loop of Henle का। ये कहाँ पे डिवाइड हो रहा है भाई? इधर। चलिए मूव करते हैं आगे। So this will be continue as a loop of Henle. Now this is the narrow part of loop of Henle. Again it will be wide. ये फिर से क्या हो जाएगा? wide हो जाएगा, and then it will be continue as the what? DCT। आगे जाके क्या बनाएगा ये? DCT, distal convoluted tubule. So it will be continue as a DCT. This will be DCT part, and then it will further move, and it will be end as a collecting duct or tubules, CT. So this is the CT, this is the DCT, this is the loop of Henle here, loop of Henle। loop of Henle के अंदर ये पार्ट जो है नीचे की तरफ जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एंड ये पार्ट ऊपर जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये तो सिंपल है, तो पता ही है। तो ये तो मैंने बनाया इसका एक बेसिक सा आउटलाइंस जो आपको ध्यान में रखना है, रहेगा याद। This is an afferent arterioles, and here we have the, यहाँ पे क्या होती है इनकी? epithelial cells। These are the epithelial cells of blood vessels, and they will be present in every part of this structure. Now here we have few specialized type of cells which is present here. It should be something like this. देखो, so these are the specialized cell of किसका पार्ट है ये? ब्लड वेसल्स की। ये ब्लड वेसल्स की स्पेशलाइज्ड सेल जो मैंने पर्पल कलर में बनाई है, दिस इज द बंच ऑफ सेल्स व्हिच इज प्रेजेंट टुवर्ड द ब्लड वेसल साइट। दिस बंच ऑफ सेल will be considered as the which type of cell? This is known as Purkinson cell. Name of the cell is Purkinson cell. Purkinson cells. When you reach at the part of this DCT, this is the distal convoluted tubule, and when you see in the microscope, here you will see there are few cells which is very dark in the color. Color क्या है? बहुत ही ज्यादा इनका dark, and they will look like finger like projections. इनके क्या दिखेंगे आपको माइक्रोस्कोप में? finger like projection and very dark in the color. That's why they known as a finger like projection is known as macule, and they जो dark color होते हैं उनको हम बोलते हैं dense, and that's why this cell is known as macula densa cell. So name of this cell is macula densa. This is the macula densa. It's very easy to remember. Macula means finger like projection, densa means dark in the color. That's why it's known as macula densa cell. So this group is Purkinson cell, this group is macula densa cell. Now in Purkinson cell there are special type of receptors, special type of receptor, and name of these receptors is, ये Purkinson cell क्या करती है? Constantly यहाँ पे जो ये blood आएगा उसका pressure को check करेगी, and that's why here we have special type of baroreceptor. So कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है बेरो रिसेप्टर, तो Purkinson cell के पास क्या होता है? बेरो रिसेप्टर, एंड बेरो रिसेप्टर्स क्या करेंगे? Constantly check the pressure of your blood vessels, और उससे अगर प्रेशर कम होगा तो ये स्टिमुलेट होगी, और ये क्या प्रोड्यूस करेगी? रेनिन, और उससे रास सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा। बेरो रिसेप्टर होने की वजह से, प्रेशर को चेक करने की वजह से, दिस बेरो रिसेप्टर एंड दिस Purkinson cell is also known as BP apparatus of body, BP apparatus of body। So आप देख सकते हैं आपकी बॉडी में नियर बाय 1 to 1.2 मिलियन BP apparatus है एक किडनी के पास। 2.5 millions of BP apparatus तो सिर्फ किडनी के पास है, बाकी दूसरी जगह बेरो रिसेप्टर होते हैं वो अलग है। Next, macula densa, which is also having special type of receptor which is known as chemoreceptor.
एंड दिस कीमोरिसेप्टर कॉन्स्टेंटली चेकिंग द लेवल ऑफ सोडियम इन दिस फिल्ट्रेट, जो आपका फिल्टर होकर यहाँ पे आएगा उस फिल्ट्रेट में से क्या चेक करेगा, ये सोडियम का लेवल चेक करेगा। और इसी वजह से इस कीमोरिसेप्टर को हम क्या बोलते हैं, इट इज नॉन एज लेबोरेटरी ऑफ द बॉडी, लेबोरेटरी ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी का लेबोरेटरी, जैसे आप बाहर लेबोरेटरी में टेस्ट कराते हैं वैसे ये अंदर चेक करने वाला लेबोरेटरी है, जो आपके ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल कॉन्स्टेंटली क्या करता है, चेक करता है। नेक्स्ट, इन कंबाइन ऑफ पॉल्किंसन सेल एंड मैक्रोडेंसा सेल, जब हम इन दोनों को एक साथ बना दे, इफ आई कंबाइन दीस टू सेल टुगेदर, these two cells जो हमने बनाई इन दोनों को अगर एक साथ हम बनाते हैं इस तरह से, so now this structure is Parkinson cell and macrodelsa combinedly known as, इसको अगर कंबाइन कर दे तो इसको हम क्या बोलते हैं, juxtaglomerulus apparatus, apparatus, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं जेजी apparatus। so juxtaglomerulus apparatus और जेजी, और ये बहुत दूर हो गया, इससे बहुत दूर हो गया, जेजी apparatus याद रहेगा। what is juxtaglomerulus, juxtaglomerulus, what is juxta, juxta का मतलब होता है नियर, पास में, so it is near to glomerulus, that's why it is known as juxtaglomerulus, and it is act like an apparatus, BP apparatus laboratory, that's why it is known as JG apparatus, it is near to the glomerulus। तो ये glomerulus है आपका, इसके पास में होता है। क्लियर यहाँ तक? तो अभी तक जो मैंने बनाया उसका समरी आपकी स्क्रीन के ऊपर, उसके बाद आगे के पार्ट और पढ़ते हैं क्या है उसमें। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछे, नहीं तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर यहाँ तक? क्लियर यहाँ तक? सो दिस इज द बेसिक, जो हम नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं। फिल्ट्रेट जो यहाँ से फिल्टर होकर आएगा, पीसीटी के पास में स्पेशल मैकेनिज्म जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, फिल्ट्रेशन कैसे होता है, और उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है। एक और जो पार्ट बचा है उसको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस नेफ्रॉन को एंड करते हैं। और इसके अंदर जो पार्ट है, जो मैंने ये बड़ी बड़ी सेल बनाई है, these are the larger cells जो मैंने यहाँ ड्रॉ करी है, at the end of DCT and at the starting of CT, these cells are known as P cells, name of these cells is P cell, or in short these cells are known as, in detailed, these cells are known as principal cell, इनका नाम क्या है, principal cells। principal cells की बात करें तो principal cells having special receptor for aldosterone। क्वेश्चन आता है एल्डोस्टेरोन कहां पे जाके एक्ट करता है, तो आंसर होगा पी सेल और प्रिंसिपल सेल, जिनके पास इनके रिसेप्टर्स होते हैं। सो प्रिंसिपल सेल इज हैविंग स्पेशल रिसेप्टर फॉर एल्डोस्टेरोन। द नेक्स्ट वन इज, जो मैं ऑलरेडी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, ये जो सेल्स है, these are the epithelial cells of collecting end of the collecting tubules, and these are having receptor for ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी ADH कहां वर्क करता है, एंड ऑफ कलेक्टिंग ट्यूबल्स, जो आपकी एपिथेलियल सेल से वहां जाके वर्क करेगा। द नेक्स्ट थिंग इज, दिस इज द लूप ऑफ हेनले, एंड जितनी भी जो डायूरेटिक्स आप पढ़ते हैं, जो लूप डायूरेटिक्स होती है, द लूप डायूरेटिक्स विल बी एक्ट ऑन दिस लूप ऑफ हेनले। नेक्स्ट पूछेगी लूप ऑफ हेनले पे कहां पे, तो आंसर होगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट है, this is the thin ascending loop of Henle, this is the thick ascending loop of Henle, so all the loop diuretics will be act at the thick ascending loop of Henle, which I will teach you in detail in the last of this session, जब हम पढ़ेंगे डायरेटिक्स तो डिटेल में पढ़ाऊंगा कैसे डायरेटिक यहाँ वर्क करती है। सो लूप डायरेटिक्स कहाँ वर्क करती है, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, वहां जाके आपकी लूप डायरेटिक्स जो क्या करती है, वर्क करती है। दिस इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर दो क्वेश्चन जो आपको ध्यान रखने हैं, अगर मैं इस नेफ्रॉन के दो पार्ट कर दूं, इफ आई विल डिवाइड दिस नेफ्रॉन इन टू पार्ट्स, लाइक इफ आई विल ड्रॉ अ लाइन हियर, सो ये मैंने लाइन बना दी यहाँ पे, दिस इज द वन पार्ट हियर एंड दिस इज द सेकंड पार्ट जो इधर है। लूप ऑफ हेनले को हाफ करने के बाद जो पार्ट आपके राइट साइड में है, दिस इज कंप्लीटली वाटर परमिएबल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, यानी यहां से वाटर इजीली क्या कर सकता है, बाहर आ सकता है, विदाउट एनी मैकेनिज्म, विदाउट एनी ड्रग और विदाउट एनी हार्मोन, कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्टली यहां से वाटर इन एंड आउट हो सकता है। सो क्वेश्चन आता है वाटर परमिएबल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, अर्ली पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, और हाईएस्ट वाटर एब्जॉर्प्शन कहां से होता है, पीसीटी पार्ट से, याद रहेगा। नेक्स्ट, इस लाइन से इधर की अगर हम बात करें तो दिस पार्ट इज कंप्लीटली वाटर इम्परमिएबल, यहां पे वाटर अपनी मर्जी से एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है। अगर वाटर को एब्जॉर्ब होना इस साइड से, इफ यू रिक्वायर टू एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम दिस साइड, देन यू नीड एल्डोस्टेरोन, देन यू नीड एडीएच, विदाउट एल्डोस्टेरोन एंड विदाउट एडीएच यू कैन नॉट रीअब्सॉर्ब द वाटर। So there are two part of the nephron, one is right side, one is left side. Right side water permeable part, left side water impermeable part। जब आगे हम डिजीज पढ़ेंगे वहां बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जनरेट करेंगे, तो ये आप याद रखेंगे, यहाँ पे रहेगा वाटर परमिएबल एंड वाटर इम्परमिएबल। मोस्ट एब्जॉर्प्शन पार्ट पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, जो आपका सबसे परमिएबल पार्ट है। दिस इज ऑल अबाउट द नेफ्रॉन। क्लियर? यस? क्या
पहले वाला, पहले थ्योरी लिखी है, यही से तो स्टार्ट किया, इधर वाला पूरा रिपीट करें। ओह माय गॉड, इफरेंट आर्टेरियोल्स, वेसल जो आगे हमने नहीं बनाई थी, इफरेंट आर्टेरियोल्स है ये इफरेंट आर्टेरियोल्स का आगे जाके क्या होगा वो भी तो पढ़ना है, व्हिच यू रिमेंबर अबाउट द नेफ्रॉन। दिस इज द वेसल जो आगे हमने नहीं बनाई थी, इफरेंट आर्टेरियोल्स है ये इफरेंट आर्टेरियोल्स का आगे जाके क्या होगा वो भी तो पढ़ना है। सो ये इफरेंट आर्टेरियोल जब आगे मूव करेगा, इट विल फॉर्म टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। एक इफरेंट आर्टेरियोल्स पे देखेंगे आप, ये आपका लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट है, और जो इफरेंट आर्टेरियोल्स है वो आएगा इधर से, और कुछ लूप नेफ्रॉन में इफरेंट आर्टेरियोल इस तरह से क्या करेगा, इसके अराउंड लूप बना देगा, लिपट जाएगा, ये इस तरह से होगा। और कुछ नेफ्रॉन आप देखेंगे जहां पे इफरेंट आर्टेरियोल्स क्या होगा, इस तरह से आपको मिलेगा, इट विल गो पैरेलल टू दिस नेफ्रॉन लाइक दिस। सो दिस इज नोन एज पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ये जो ऊपर बनाई वो क्या है, पेरी, पेरी यानी अराउंड, किसके अराउंड, ट्यूबल्स के अराउंड, रिनल ट्यूबल्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, एंड दिस इज नोन एज वासा रेक्टा। वासा रेक्टा, तो ये दोनों किसके टाइप है, इफरेंट आर्टेरियोल के ही टाइप है। अगर ये सीधा जा रहा है तो इसको बोलते हैं वासा रेक्टा, और ये इस तरह से घूम के जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो दो टाइप के नेफ्रॉन बनाएगा, जो मैं आगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन में पढ़ाऊंगा। हमने जो स्टार्ट किया था इफरेंट आर्टेरियोल्स एंड एफरेंट आर्टेरियोल्स, सबसे पहले हमने बनाया ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है, इससे बंच ऑफ कैपिलरीज। व्हाट इज ग्लोमेरुलस, आंसर शुड बी इट्स बंच ऑफ कैपिलरीज। बंच ऑफ कैपिलरीज के अंदर स्पेशल जो हमने बात किया, फर्स्ट थिंग वो है आपका मेसेंजर सेल, प्रेजेंस ऑफ मेसेंजर सेल। मेसेंजर सेल आर द स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल सेल एंड फेगोसाइटिक सेल ऑफ रेनल सिस्टम। ये कहां प्रेजेंट होती है, अराउंड द कैपिलरीज। फंक्शन क्या है, फेगोसाइटोसिस करना, उसके साथ में वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, इससे क्या होगा, आपका फिल्ट्रेशन होगा। नेक्स्ट मेम्ब्रेन हमने बनाई, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, थ्री मेम्ब्रेन यहां पे हमने बनाई। The first one is the endothelial cells of the blood vessels, fenestrated capillaries, basement membrane